Hey guys, what's up? Welcome back to today's video. I hope you all can hear me, you all can see me, right? Okay, so I think if I'm not wrong, till last class we have completed around 3 lectures for the topic dilute solution, right? And I think you all must have done the homework also which was given to you. So, agar you have all completed the homework, you have gone through all the topics which I have been teaching you till the last class. So, now freshly, I think we can get started with our fourth lecture, which is the fourth lecture for the chapter Dilute Solutions. Anna? Okay, so before I start the lecture, let me introduce myself. Those who are new to the channel, guys, you are watching An Academy class 11th and 12th live daily, okay? And I am Sakshi Vora and I'm a pass out of IIT Roorkee. You know, when I was in grade 10th and 12th, I had been a CBSE state topper. I had also been a KVPY fellow. That means I was awarded with Kishore Vigyanik Protsahan Yojana certificate. Okay? And since last 6.5 years, I have been teaching chemistry to all the students for JEE, for NEET, as well as for CBSE. Okay, so guys, this was little information from my side about me. And now I have a humble request for all you students. भाई सब लोगों को पता है कि आजकल कोरोना कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चल रहा है. कल ही I was recording one video where I was discussing कि how CBSE has changed the guideline for this new academic year 2020-2021, है ना? तो भाई कुछ कुछ टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं, कुछ कुछ नए टॉपिक्स हैव बीन एडेड, एकेडमिक कैलेंडर पूरा का पूरा चेंज हो गया. So guys, you are lucky enough that we are meeting on everyday basis. I am teaching you, you are learning something new on a regular basis, है ना? But there are so many students out there who have no idea about this amazing platform of Unacademy. Unacademy has specially started live school daily for the students ताकि इस लॉकडाउन के पीरियड में भी किसी की पढ़ाई रुके ना, है ना? तो आई थिंक एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ मोरल कॉज, we should be sharing the video with as many students as possible. ठीक है, तो फटाफट से वीडियो शेयर हो जानी चाहिए with the hashtag live school daily so that every particular student out there is having the access to these videos. ठीक, okay, so moving on to something interesting which Unacademy has launched these days. It is about subscription charges. देखो, पहले जो Unacademy का 1 month का सब्सक्रिप्शन चार्ज होता था ना, वो था अराउंड 2500 पर मंथ. बट आजकल इतना अच्छा ऑफर चल रहा है कि इफ यू यूज दिस कोड साक्षी लाइव, है ना, तो योर सब्सक्रिप्शन चार्जेस विल बी जस्ट ₹99. मतलब 2500 का सब्सक्रिप्शन अब मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में, विच इज इन इटसेल्फ अ वेरी वेरी ग्रेट थिंग, है ना? तो यार, अगर अभी तक यू हैव नॉट गॉट द सब्सक्रिप्शन, तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि फटाफट से ये वाला कोड यूज कर लो और एक महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो. देखो, अगर तुम्हें 1 महीने का सब्सक्रिप्शन पसंद आया ना, देन आई थिंक यू कैन गो फॉर 3 months, 6 months एंड 12 month सब्सक्रिप्शन ऑल्सो. 3 months का सब्सक्रिप्शन आई विल नॉट रिकमेंड यू गाइज टू टेक बिकॉज वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, और अगर तुम्हें पूरे 1 साल पढ़ाई करनी है तो बेटर टू गो फॉर 6 months एंड 12 month सब्सक्रिप्शन. 6 months का सब्सक्रिप्शन पहले आता था 10,000 का, बट अगेन इफ यू यूज दिस कोड साक्षी लाइव यू विल गेट 10% डिस्काउंट इंस्टेंटली एंड यू विल गेट द सब्सक्रिप्शन फॉर ₹9,000. सिमिलरली जो पहले सब्सक्रिप्शन 1 year का 12,500 का आता था, अब वो सब्सक्रिप्शन आता है जस्ट 11,250. मतलब यार, ये खुद से एक बहुत ही अच्छी चीज है कि 10% डिस्काउंट मिलता है अगर यू यूज दिस कोड साक्षी लाइव. ठीक है, तो गाइज, दोज हु आर इंटरेस्टेड, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल गो टू द डिटेल्स ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. कैसे लेना है, व्हाट इज द प्रोसीजर टू बी फॉलोड, क्यों लेना चाहिए, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, I will tell you each and everything on an honest basis. ठीक है, तो but this will discuss at the end of the video. अब हम स्टार्ट करते हैं with something जिसके लिए almost all of you are waiting, and today's topic is our fourth lecture for the dilute solution. But यार, मैं एक बहुत ही क्या कहते हैं गंदी एक स्ट्रिक्ट टीचर हूँ. रिमेंबर लास्ट टाइम आई गेव यू वन होमवर्क. मैंने बोला था कि सबसे पहले होमवर्क डिस्कशन होगा आज की क्लास में, उसके बाद आई विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक, है ना?
तो अब फटाफट से होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास का। देखो, याद है, जस्ट टू गिव यू अ रिकैप, लास्ट क्लास में वी वर डूइंग हेनरीज लॉ, एंड बाय द वे आज का जो टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो सबसे पहले हेनरीज लॉ का एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद विल सी व्हाट आर द एप्लीकेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले भगवान का नाम ले लो, क्योंकि पढ़ाई अच्छी जाती है भगवान का नाम लेने से, ऐसा मेरा मानना है। आई डोंट नो अबाउट यू पीपल, तो अगर यू बिलीव इन गॉड तो भाई याद कर लो भगवान जी को, अच्छी बात होती है। देखो, लेट मी रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन। ओके, मतलब मेरे पास पानी की बोतल है और उसके अंदर हमने नाइट्रोजन गैस बबल करी। ठीक है, बबल करी मतलब नाइट्रोजन गैस डाली। How many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? Question ये है कि there is a bottle of water और ये 1 लीटर पानी की है, इसमें 1 लीटर पानी है और इसके अंदर हमने कुछ नाइट्रोजन गैस बबल करी। ठीक है, अब बताओ इसके अंदर कितनी नाइट्रोजन गैस गई। That is what we have to tell. अब देखो, let us read the question further. Question ये भी बोल रहा है कि assume that nitrogen exerts a partial pressure of 0.98 bar, मतलब प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना दे रखा है, 0.98 बार। ठीक है, कि जब नाइट्रोजन पानी के अंदर गया तो उसने कितनी प्रेशर एक्सर्ट करी, 0.987 बार। 7 भी लिखना भूल गई हूँ, लिख देती हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, जो आई थिंक यू नो इज KH. So the Henry's law constant is given to us as 76.48 kilobars. ठीक है, अब एक एक करके मैं सिखाती हूँ कि क्वेश्चन करना कैसे है। गाइस देखो, सबसे पहली गलती जो सब लोग मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ये गलती करते हैं, वो गलती ये है कि यू फॉरगेट टू कन्वर्ट किलोबार्स टू बार। तो सबसे पहली चीज ये है, यू शुड कन्वर्ट किलोबार्स टू बार। तो यहां पर आई विल बी राइटिंग 76.48 किलोबार, मतलब मल्टीप्लाइड विथ 1000 बार। तो ये हो गया हमारा KH की वैल्यू। ठीक है, अब यार आई कैन सिंपली यूज हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग P इज इक्वल टू KH इंटू X, X इज मोल फ्रैक्शन, है ना। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 0.987 बार डिवाइडेड बाय 76.48 times 1000 bar and we will be getting the mole fraction which is X. ये बात भी समझ आ गई। अब देखो दोनों यूनिट सेम है, बार एंड बार, so they will get cancelled and you can easily solve for X. तो मतलब I am assuming कि X तुमने निकाल लिया। ठीक है, बट क्या हमारा क्वेश्चन था कि you have to find the mole fraction? No, right? Our question was not to find mole fraction. Question क्या था? You have to find how many millimoles of nitrogen are there. तो मैं क्या करूंगी? I will write it like, देखो, मुझे पता है मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। यही तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है ना। अब यार नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर तो मुझे नहीं दे रखे हैं, तो कैसे निकालते हैं? ये बात याद है, नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, द फॉर्मूला इज गिवन मास बाय मोलर मास, है ना। अब वाटर कितना दे रखा है, वाटर इज गिवन टू मी एज 1 लीटर। अब हाउ टू कन्वर्ट लीटर्स टू ग्राम्स, तो ये तो पता है ना कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। और ये भी मैं मान सकती हूँ कि भाई डेंसिटी ऑफ वाटर कितना, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। तो 1000 ml का मास कितना, 1000 ml का मास विल बी 1000 ग्राम। दैट्स इट। यहाँ पे ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दो, गिवन मास कितना, 1000 ग्राम्स, लेट मी रीराइट दिस, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना, 18 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, एंड व्हेन यू सॉल्व द आंसर विल बी 55.55 मोल्स। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर पता चल गए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। X तो हमने निकाल लिया, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस 55.55। दैट्स इट। नाउ देखो, अब इट इज अप टू यू, you know the star value, you know 55.55, you can easily solve the value of number of moles of nitrogen.
ठीक, बट लेट्स से कि क्वेश्चन काफी लेंदी है और हमारे पास टाइम नहीं है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो आई विल सजेस्ट यू व्हाट यू डू. देखो, कैन आई से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन माइट बी इन एक्सक्लूडेड, मतलब उसको हटा दो, नेग्लेक्ट कर दो. तो वी कैन सिंपली से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस 55.55 is approximately taken as 55.55 only. बस यहां से ये इग्नोर कर दो, सॉल्व, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन. बट हमारा क्वेश्चन नंबर ऑफ मोल्स निकालना नहीं था, हमारा क्वेश्चन था नंबर ऑफ मिली मोल्स निकालना. तो अब जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उसको डिवाइड कर दो 1000 से, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर. ठीक है, तो जिन जिन का आंसर आ गया, प्लीज लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई गेट टू नो कि यू गाइज हैव डन दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली एट होम. ठीक है, तो आई एम एज्यूमिंग कि हेनरीज लॉ का क्वेश्चन आ गया. अगर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन, मतलब इफ अ सिमिलर क्वेश्चन इज आस्क्ड टू यू इन एग्जाम, तो यू शुड बी प्रो विद दैट क्वेश्चन. ठीक है, चलो, सो हैविंग डन हेनरीज लॉ, अब हम बात करते हैं, लेट अस गो इनटू द डिटेल्स अबाउट एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ. कि भाई फायदा क्या है हेनरीज लॉ का, कहां पर हेनरीज लॉ हमारे काम आएगा, और लाइक व्हाट आर द थिंग्स वी कैन डिसाइफर फ्रॉम हेनरीज लॉ प्रैक्टिकल बेसिस पे. ठीक है, सो दिस मेक्स मी कम टू another topic which is application of Henry's law. देखो, I will discuss 3 applications with you, and guys, अगर you are someone who is studying in CBSE grade 12th, ठीक है, और you are someone who is going to write state board this year, तो मेरी बात अगले 15 मिनट के लिए बहुत 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 ध्यान से सुनो, because whatever I am going to tell you, it has been asked in paper earlier and बहुत सारे चांसेस हैं कि it can be asked again also. तो या तो वो जो 1 मार्क वाला क्वेश्चन होता है, या you can get this question for 2 marks in your board exams. तो क्या लिखना है, क्या क्वेश्चन है, उसको ध्यान से समझना. देखो, पहली एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ क्या है, मैं थोड़ा सा डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझाती हूँ. सुनो मेरी बात ध्यान से. यार तुम्हें पता है, जब हम, मतलब हमारे घर में ऐसा होता है कि ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल आई, आजकल नहीं आ रही क्योंकि लॉकडाउन है, मतलब नहीं मिल रही कोल्ड ड्रिंक, बट पहले क्या होता था, मान लो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल आई हमारे घर में, ठीक है, तो आई हैव दिस हैबिट कि मैं जाऊंगी फ्रिज के पास, आई विल ओपन द डोर, वहां से बॉटल निकाली, कैप खोला और एक सिप लिया. एक सिप लेने के बाद आई स्टार्ट चिट चैटिंग, है ना, एंड बॉटल खुली हुई है. थोड़ी देर बाद आई विल टेक अनदर सिप, थोड़ी देर बाद आई विल टेक अनदर सिप, मतलब I do not close the bottle because I am lazy. ठीक है, और ये 3-4 मिनट तक चलता है. ठीक है, और उन्हीं 3-4 मिनट में my mother, she starts shouting at me, she starts yelling at me like anything. कि why don't you close the bottle of cold drink? Why do you keep it open? Blah 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 blah. I think your mother also does that, है ना? All our mothers are same. They feel good when they shout at us. So have you ever noticed? Have you ever thought कि why they start shouting? देखो, कोई उनको मजा थोड़ी ना आ रहा होता है, बट स्टिल देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दिस. सुनो मेरी बात, क्या होता है यार, यू नो राइट, कोल्ड ड्रिंक होती क्या है? कोल्ड ड्रिंक इज नथिंग, मतलब एक मीठा पानी होता है हमारे पास. वी हैव स्वीट वाटर, और इस मीठे पानी में हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व करी होती है एट अ वेरी वेरी हाई प्रेशर. बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम पानी में डिसॉल्व कर देते हैं और वो कोल्ड ड्रिंक बन जाती है. ठीक है, और यू नो दिस थिंग राइट, कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज नॉट वेरी मच, मतलब गैसेस खुद से पानी के अंदर नहीं जाना चाहती, और अगर गैस खुद से पानी के अंदर नहीं जाना चाहती, सो वी फोर्स द गैस टू गो इनसाइड वाटर, है ना. हाउ वी फोर्स द गैस? वी फोर्स द गैस बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर. तो हम क्या कर देते हैं, हम प्रेशर बढ़ा देते हैं. जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा, मतलब गैस उतनी ज्यादा पानी में डिसॉल्व होगी. दैट इज व्हाट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन. देखो, हेनरीज लॉ होता क्या है, इट इज P इज इक्वल टू KH इंटू X, यही तो फॉर्मूला है. अगर मैंने प्रेशर ऑफ द गैस बढ़ाया, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस बढ़ जाएगा. तो अगर ज्यादा प्रेशर से गैस को पानी में डालेंगे, तो ज्यादा 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 गैस पानी में जाएगी, मतलब ज्यादा फिज विल बी प्रोड्यूस्ड.
आ गई बात समझ? सो इट सेज टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर, द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। इसी रीजन से हम बॉटल को एकदम हाई प्रेशर पे सील रखते हैं ताकि गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो। अगर गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हुआ, अगर ये P ज्यादा हुआ, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस विल बी मोर। ठीक है, अब इसके साथ साथ आई वॉन्ट यू टू आंसर मी वन अनदर क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन ये है कि जब भी मतलब विंटर्स में भी ना अगर हम कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं तो हम कोल्ड ड्रिंक को जनरली फ्रिज में रखते हैं। वी कीप द कोल्ड ड्रिंक इन रेफ्रिजरेटर, इन फ्रीजर, बट मतलब फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में कोल्ड ड्रिंक्स रखते हैं, बट बाहर रूम टेम्परेचर पे नहीं रखते हैं। एंड द क्वेश्चन इज व्हाई। अब जिन जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, आई थिंक यू पीपल कैन कनेक्ट विद द वीडियो, यू कैन कनेक्ट द डॉट्स एंड यू विल गेट टू नो द कॉन्सेप्ट कि भाई मैम जो सॉल्युबिलिटी होता है ना वो टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया मतलब मॉलिक्यूल्स विल गेट मोर एनर्जी, जैसे ये डायग्राम में दिख रहा है ना, मॉलिक्यूल्स विल गेट मोर एनर्जी और वो मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाएगी। दिस यू नो राइट कि ज्यादा टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। दैट इज वाई हम क्यों रखते हैं बॉटल्स को फ्रिज में, क्योंकि फ्रिज में टेम्परेचर लो होता है, और अगर फ्रिज में टेम्परेचर लो होता है मतलब फ्रिज में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आई थिंक ये बात सब लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है कि सॉल्युबिलिटी दो चीजों पे डिपेंड करेगी, एक तो करेगी टेम्परेचर पे और एक करेगी प्रेशर पे। अगर प्रेशर ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, इसीलिए बॉटल को हम एकदम टाइट करके रखते हैं। अगर टेम्परेचर कम तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, इसीलिए कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल को फ्रिज में रखते हैं। क्या ये बात सबको यहां तक समझ आ गई? आई थिंक यू ऑल आर कंफर्टेबल विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक, राइट? तो यहां से यू कैन गेट 2 क्वेश्चन, 1 मार्क ईच, कि भाई why bottles are sealed under high pressure or why the bottles are kept in refrigerator. ठीक है, so this was a 1 marker or a 2 marker question that I wanted to discuss. I hope the concept is clear to everyone. तो अगर पूरा concept समझ आ रहा है, if you are able to relate it with your daily life, तो I think यार it's a good idea to like the video, है ना? इससे मुझे भी अच्छी motivation मिलती है and I get to know that you all are getting some good things from the video. चलो, तो अगर यहां तक हो गया, नाउ लेट अस कम ऑन टू द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। देखो सेकंड एप्लीकेशन क्या है हेनरीज लॉ की, इसको भी आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट इन डेली लाइफ एग्जाम्पल। या कभी तुमने डीप सी डाइविंग करी है? मतलब इफ यू हैव नॉट डन इट, हैव यू एवर सीन एनी पर्सन गोइंग फॉर अ डीप सी डाइविंग? तो जो डाइवर्स होते हैं ना, उनके पीछे हमेशा एक ना टैंक लगा होता है, एक बैग लगा होता है विच इज फुल ऑफ गैसेस। मतलब देयर इज अ टैंक विच कंटेन्स ऑल द गैसेस, और ये कुछ ऐसी सी शक्ल होती है उस टैंक की। देखो ये भैया डीप सी डाइविंग करने जा रहे हैं और इनकी बॉडी पे ये टैंक लगा हुआ है विच कंटेन्स गैसेस। और मतलब अब हमें पता करना है कि भाई व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टैंक, ये टैंक क्यों लगाते हैं, इस टैंक में गैसेस कौन सी फिल करते हैं और क्यों गैसेस फिल करते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस अब हमें डिस्कस करने हैं। तो मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करती हूँ। आई स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक। देखो यू नो दिस थिंग राइट, मान लो देयर इज दिस बकेट ऑफ वाटर, ठीक है, या मतलब मान लो ये एक डीप सी है, ये एक सी है, ठीक है। सी के ऊपर वाले सरफेस पे प्रेशर की वैल्यू कुछ और होगी, बट जैसे 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 सी के नीचे 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 जाएंगे, लाइक वी गो डीपर इनटू द सी, तो यू डू अग्री राइट कि प्रेशर बढ़ता जाएगा। एग्रीड कि जैसे जैसे सी के डेप्थ में जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। अगर प्रेशर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस बढ़ जाती है। यू अग्री टू दिस थिंग राइट? अब इसको कोरिलेट करने की कोशिश करो। मान लो मैं यहां पर हूं, मुझे डाइविंग करनी है एंड आई एम एट द सर्फेस ऑफ सी, ठीक है, और सब कुछ कूल है, आई एम वेरी एक्साइटेड। तो जैसे ही मैंने डाइव किया इनटू द सी और मैं नीचे गई सी में, तो डोंट यू थिंक प्रेशर ज्यादा है? अगर नीचे जाते हुए प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो डोंट यू थिंक सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी? मतलब अब मेरे ब्लड में मोर अमाउंट ऑफ गैसेस विल बी डिसॉल्व्ड। अब गैसेस का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन तो होता नहीं है, तो क्या होता है, नाइट्रोजन इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो ज्यादा अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन हमारी बॉडी में चली जाती है, ठीक है। अब यार ऑक्सीजन का तो समझ आता है कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, इट इज रेगुलेटेड थ्रू आउट आवर बॉडी, आई अग्री टू दैट थिंग। बट
नाइट्रोजन का हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है एज सच, इट इज जस्ट अ ट्रैश, इट इज जस्ट वेस्ट, मतलब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। बट अगर हमारी बॉडी में सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन बढ़ गया तो इट विल क्रिएट ब्लॉकेज, मतलब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि नाइट्रोजन इतना ज्यादा एक्सेस में हो गया। आ रही है बात समझ? तो क्या बोला मैंने, जब मैं सी के सरफेस पे थी एवरीथिंग वाज कूल, आई वाज हैप्पी। जैसे ही मैंने डाइव किया तो नीचे जाते हुए एकदम से प्रेशर बढ़ गया, तो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन विच कैन गो इनटू माय ब्लड विल इंक्रीज, विच विल क्रिएट प्रॉब्लम, ठीक है। अब समझो, ध्यान से समझो। और अब मान लो, पता है जब मैं ऊपर आती हूँ ना तो डाइवर्स को ऐसा बोला जाता है कि जब ऊपर आते हो ना तो धीरे धीरे ऊपर आओगे, एकदम फास्ट तरीके से ऊपर नहीं आओगे। वाई? मान लो वो नीचे गया तो बहुत ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी नाइट्रोजन की ब्लड में, है ना। अब वो एकदम से ऊपर आएगा तो सारी नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगी। सो अगर एकदम से नाइट्रोजन बढ़ गया एंड एकदम से नाइट्रोजन गेट्स रिलीज तो इट क्रिएट्स बेंड्स इन डाइवर्स, तो डाइवर्स की बॉडी में बेंड्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वी से कि डाइविंग करना, मतलब देयर इज अ साइंस कि डाइविंग कैसे करते हैं। तो जाओ फास्ट, बट जब धीरे आओगे तो स्लोली यू शुड कम आउट, ताकि नाइट्रोजन का लेवल जो डिक्रीज होगा वो स्लो लेवल पे डिक्रीज हो, ठीक है। सो आई हैव रिटन दिस complete detail here. I have tried to explain this with the help of a diagram. Let me go through this thing so that to understand ki whether you people are okay with this thing or not. देखो, so guys, you don't have to note down anything. I will be uploading the PDF of this particular video in the description box once the lecture is over. So वहां से you can download the PDF and you can go through all the notes. ठीक है? देखो, so यहाँ पे I have written when our surrounding pressure increase or decrease, the amount of nitrogen our body can absorb will change. That is what I told you, है ना। The surrounding pressure increases, जब बहुत नीचे होते हैं तो surrounding का pressure increase हो जाता है, and nitrogen travels under high pressure from the lungs to the blood. पूरे blood में nitrogen बहुत ज्यादा high pressure पे पहुंच जाती है, ठीक है। उसके बाद जब हम ऊपर आते हैं, ascending too quickly won't allow enough time for nitrogen to leave the blood, resulting in bonds और resulting in bends, और कई बार इतनी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो जाती है that a diver can also die, ठीक है। इसीलिए जो भी डाइविंग में इंटरेस्टेड हैं, प्लीज गो थ्रू द साइंस कि क्या साइंस है डाइविंग की, और उसके बाद ऐसे ऐसे मतलब ये सब अपने घरों मतलब जहा के करना, ठीक है। ओके, तो यार अब ठीक है, समझ आ गया कि मैम डाइविंग करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अब कैन यू टेल कि कैसे बच सकते हैं इस सिचुएशन से, है ना। तो देखो क्या करते हैं, ये जो बैग होता है ना डाइवर्स के शोल्डर्स पे, वो बैग में क्या होता है, उस बैग में जो हम एयर लेते हैं, दैट एयर इज डाइल्यूटेड विद हीलियम, मतलब उस एयर में ऑक्सीजन होनी चाहिए थी, नाइट्रोजन होनी चाहिए थी, बट हम थोड़ी सी अमाउंट हीलियम की भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि हीलियम से ब्लड की सॉल्युबिलिटी, ब्लड में गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। सो आई हैव रिटन हियर to avoid the bends as well as the toxic effect of high concentration of nitrogen in the blood, the tanks which are used by scuba divers are filled with air which is diluted with helium. You don't have to mug up the percentage, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, the whole concept you have to remember. ठीक है। So guys, for your information, this particular question related to the bends in the scuba divers has been asked as a 3-marker question in CBSE board exam. एक साल वो कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जाम्पल पूछते हैं, एक साल वो डाइवर वाला एग्जाम्पल पूछते हैं, और किसी साल वो एनॉक्सिया वाला एग्जाम्पल पूछते हैं, विच आई विल बी टेलिंग यू इन अनदर 2 minutes, ठीक है। तो आई होप ये जो सेकंड था एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी द डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, फॉर श्योर आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स, ठीक है। ओके, Now moving to our third and the last application of Henry's law, जिसका नाम है एनॉक्सिया। देखो ये क्या होता है, इसको भी एक बार ध्यान से समझते हैं। यार कभी ट्रैकिंग पे गए हो, कभी माउंटेन्स पे गए हो ट्रैक करने के लिए, तो देखो जब हम माउंटेन्स पे जाते हैं ना, अब तुम ये आंटी की शक्ल सोच के ये मत सोचना कि शी इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना तो उन्होंने वो लगा रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज समथिंग एल्स आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। सी हियर, मान लो ये प्लेन्स है ना, हम यहाँ पर हैं और कई लोग हिली एरियाज में ट्रैकिंग करने जाते हैं। तो देखो होता क्या है, जब हम ट्रैक पे जाते हैं हिली एरिया में, यू डू अग्री राइट
ऊपर जाते जाते एयर का प्रेशर कम हो जाता है। हम यहाँ पे खड़े थे, एवरीथिंग वाज ओके, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन आवर ब्लड वाज ओके, सब कुछ कंफर्टेबल था। बट जैसे जैसे मैं ऊपर गई, है ना, तो क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया। अगर प्रेशर कम हो गया तो यार हेनरीज लॉ यूज करो, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। अगर प्रेशर कम हो गया तो डोंट यू थिंक मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन के कम होने का मतलब डोंट यू थिंक सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन आवर ब्लड कम हो जाएगी, है ना? तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे तो प्रेशर कम हो रहा था, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी इन आवर ब्लड कम हो रही थी। अब सोचो, जितनी हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए थी, आवर बॉडी वाज नॉट गेटिंग दैट मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। मतलब उतनी जल्दी जल्दी ऑक्सीजन हमारे ब्लड में सर्कुलेट नहीं हो रहा था। इट वाज नॉट बीइंग ट्रांसपोर्टेड थ्रू टू द ब्रेन आल्सो। तो अगर ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं तो इसका क्या मतलब है, ब्रेन विल स्टार्ट वर्किंग स्लोली, वी विल फील टायर्ड, वी विल फील लाइक डिजीनेस आ जाएगी, है ना? और कई बार इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि कई लोगों के नोज ब्लीडिंग हो जाती है, कईयों के ईयर ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है? सो ऑल दीज एक्सट्रीम केसेस, जब हमारे को डिजीनेस आ जाती है या आवर ब्रेन स्टार्ट्स फंक्शनिंग स्लो, आर व्हाट शुड आई से, वी फील वीक, वी फील टायर्ड, तो इस पूरे सिम्टम को हम क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया, ठीक है? और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट किसको जाता है, हेनरीज लॉ ऑफ गैसेस, राइट? अब देखो यहाँ पर I have compiled this thing for you guys. I have written at higher altitudes the partial pressure of oxygen is less. I hope you all agree. So there will be low concentration of oxygen in the blood. I hope you agree to this thing also. तो उसकी वजह से क्या होगा, we will feel weak and will be unable to think clearly. मतलब symptoms of a condition called anoxia. That's it. आ गया समझ? Again, to your surprise, you will be actually surprised to know that writing these 3 sentences in board exams, you will be getting 3 marks. And I'm not saying कि ये question आएगा या आ सकता है. This question has been asked at least 2-3 times in past year papers. तो अगर 2-3 बार past year paper में, and moreover for your information, once this question was also asked in JEE. तो अगर इस एनॉक्सिया का इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस है दैट दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन जेईई एंड 2-3 टाइम्स इन बोर्ड एग्जाम, तो आई होप नाउ दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू कि ये टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या थी, ठीक है? सो गाइज, फ्रॉम टुडेज वीडियो आई हैव ट्राइड टू मेक श्योर कि यू शुड बी गेटिंग, मतलब यू कैन इजिली गेट दोज 3 numbers which might be there in the paper related to this topic. So this was the sole reason why I had recorded a video especially for the applications of Henry's law. ठीक है? I know many of you people have this habit of skipping the application part कि अरे ये तो बहुत easy है, हम कर लेंगे. But I think after watching the video you know what is the importance of application of laws. So अगली बार कोई law करोगे तो उसकी applications अच्छे से करके जाओगे, ठीक है? So I think I should be winding up here for today because now another topic that I have is vapor pressure. That is a completely different topic which I would like to teach you in my next class. So I think you all are ready to come to the next class to understand more details of the same topic, right? Okay, so now since so many people were asking about Unacademy subscription, so let me tell you a little idea about the subscription. And yes, I was getting so many comments कि मैम YouTube पे क्लासेस का टाइम टेबल बता दो, ठीक है? अब देयर आर 2 reasons why people are not aware of the timetable. First, you have not subscribed. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो जब जब हम लाइव आएंगे यू विल नेवर गेट द नोटिफिकेशन, है ना? तो अगर अभी तक यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल अनअकैडमी क्लास 11th 12th, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू सब्सक्राइब, है ना? क्योंकि on this channel on a daily basis we are coming for live classes. Like the schedule says, on Monday, Wednesday and Friday, ठीक है? The schedule is starting from 9 AM, 10, 11, 12. My classes will always be at 12 PM, ठीक है? 9 AM को 11th वालों की बायो की क्लास होगी, 12th वाले people will have maths की क्लास, 11th will have physics and 12th will have chemistry, ठीक है? Alternatively, on Tuesday, Thursday, Saturday, timings remain the same, but now the classes 12th will have bio, 11th will have maths, 12th will have physics and 11th will have chemistry. तो देखो टाइम टेबल हैज बीन सेट इन सच अ वे कि इफ यू आर अ स्टूडेंट इन 11th, ठीक है, एंड साइड बाय साइड यू वांट टू स्टडी 12th आल्सो, सो यू कैन अटेंड द क्लासेस बोथ द डेज. अदर वे अराउंड, अगर यू आर इन 12th
and you want a quick revision of 11th grade stuff, so you can watch the classes for 11th also. And these classes are free of cost, so I don't think you should mind attending the classes, है ना? So this was about the timetable. Now coming to Unacademy subscription. So guys देखो plus पे classes start हो चुकी हैं, and I think it's the best time you can get Unacademy subscription for the live classes. I will say this thing मतलब mainly because यार अगर तुम्हें YouTube पे पढ़ के इतना अच्छा लगता है, मतलब you are able to interact with the teacher, तो अगर you get to see this level of interaction with us, with the educators in the live classes, तो भाई there is such a great difference. वहां पर I'll tell you what is the teaching method, like how we teach on Unacademy's live classes. तो suppose I will be teaching, or you can say sir is teaching here, ठीक है? So you will be able to listen to sir throughout the class. Now you will keep on asking the doubts in the comment section. Suppose there is a particular doubt in a question you are not able to do. So you will ask the teacher to upload, like you will upload the doubt and you will ask the teacher to solve. Now your doubt, जो सिर्फ तुम्हारा doubt था, will be solved by the teacher in front of everyone. मतलब the whole class will be getting the benefits out of those doubts. ठीक है? So यार यहाँ पर जो interaction level है, जो doubt removal classes हैं, वो बहुत ही अच्छे level पर होती है. So I think you can try for this thing. ठीक है? तो अगर I will say यार कि अगर moreover यहाँ पर teachers की कमी नहीं है, मतलब it is not कि like अगर chemistry पढ़ना है तो only Sakshi ma'am is going to teach chemistry. It's nothing like that. So there are so many teachers out there on Unacademy's platform who are taking classes on continuous basis, on daily basis. तो जो भी टीचर का क्लास अच्छा लगे, जिस भी बैच में जाने का मन हो, वहां पर यू कैन अटेंड द क्लासेस. देयर इज नो लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ टीचर्स, ऑन लाइक which teacher should I be studying from. You can study from each and every teacher, from all the teachers. Everything is possible on Unacademy. ठीक है? So अब I will suggest you one more thing कि भाई फटाफट से क्या करके देखो, अगर you want to have an idea कि क्लासेस दिखती कैसे हैं, होती कैसे हैं, तो सबसे पहले Unacademy की लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लो. ठीक है? उसके बाद if you want the subscription, you should go to this plus, and depending upon your grade, depending upon your field कि you want 11th or 12th or IIT, JEE, NEET, class 9th or 10th, किसी भी grade में हो, यहाँ पर you can select the stream accordingly and you will get subscription and you'll go to get subscription. अब सब्सक्रिप्शन लेते हुए थोड़ा सा दिमाग यूज करना यार. पहले जब Unacademy के चार्जेस थे, 1 month का चार्ज was 2500, 6 months का charge was for 10,000 and 12 months का charge was for 12,500. But now you guys have a very good thing. You can use this code Sakshi Live. So once you use this code, जो 2,500 per month वाला subscription था ना, now you will be getting just for ₹99. This is something very awesome which you should not miss. 6 months का subscription which was for 10,000, if you use this code Sakshi Live, now the subscription prices will be just 9,000. 12 months का subscription which was for 12,500, now on using the code will become just of 11,250. तो भाई बहुत ही अच्छा मौका है, और सबसे बढ़िया मेरे को तो ये लग रहा है कि अभी फटाफट से you should be getting this subscription for ₹99 by using the code Sakshi Live. एक बार 1 महीने का अटेंड करके देखो, you will get to know कि what is the feel of classes, are they beneficial or not, and then you can decide for your further classes. ठीक है? So I think guys that is it from my side for today's video. Now I'll be meeting you very soon in one of my next video. Hope you stay tuned, है ना? And hope you stay safe also. And yes, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लो, so that whenever I come online, you are there with me. चलो guys, so thank you so much. I'll be meeting you very soon. Take care. Bye bye.